السلام علیکم، آج 9 بجے میں خوش آمدید، میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں کرن رضوی۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کی، جس کے خلاف صحافی اور اپوزیشن جماعتیں ڈٹ گئی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران احتجاج سے خوفزدہ حکومت نے پارلیمنٹ کو صحافیوں کے لیے نو گو ایریا بنا دیا۔ پریس گیلری کے دروازے بند کر دیے، کیفیٹیریا تک محدود کیے جانے اور کوریج کی اجازت نہ ملنے پر صحافیوں نے راہداری میں دھرنا دے دیا۔ اپوزیشن نے صدر مملکت کے خطاب کے دوران بھرپور احتجاج کیا، ایوان نعروں سے گونجتا رہا۔ حزب اختلاف نے اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ پی ایم ڈی اے بل نامنظور، مجوزہ بل کے خلاف صحافی اور سیاستدان ہو گئی یک زبان، بوکھلا گئے حکمران۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر مملکت کے خطاب کے دوران احتجاج سے خوفزدہ حکومت نے صحافیوں پر پارلیمنٹ کے دروازے بند کر دیے۔ کوریج سے روکنے پر پارلیمانی رپورٹرز نے احتجاجاً دھرنا دے دیا۔ حکومت نے پارلیمنٹ میں داخلے کا مرکزی دروازہ بھی سیل کر دیا۔ ایک طرف صحافیوں نے مورچہ سنبھالا تو ایوان کے اندر سیاستدانوں نے محاذ خوب گرمایا۔ صدر مملکت کے خطاب کے دوران اپوزیشن نے پوزیشن سنبھالی، ایوان نعروں سے گونجتا رہا۔ چیدہ کامیابیوں کا جو ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر، اس کے باوجود کہ آپ شور مچائیں، حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی۔ اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا گیا، جس کے بعد حزب اختلاف کے ارکان اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے۔ اپوزیشن ارکان واک آؤٹ کے بعد صحافیوں کے دھرنے میں پہنچ گئے۔ ہم نے پارلیمان میں آپ کے لیے بھرپور احتجاج کیا ہے۔ سیاسی رہنماؤں اور صحافیوں نے عزم ظاہر کیا کہ وہ آزادی اظہار رائے کے لیے ڈٹے رہیں گے۔ صحافیوں کے دھرنے نے منقسم اپوزیشن کو متحد کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے ساتھ صحافیوں کے دھرنے میں پہنچ گئے۔ کہا میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کالا قانون لایا جا رہا ہے، اس بل کو پارلیمنٹ سے منظور نہیں ہونے دیں گے۔ آزادی صحافت کی جدوجہد میں صحافیوں کے ساتھ ہیں۔ ابھی ہم نے پارلیمان میں آپ کے لیے بھرپور احتجاج کیا ہے اور ہم نے بینر اٹھائے، نعرے لگائے، اس کے بعد ہم وہاں سے احتجاج کر کے واک آؤٹ کر کے دوبارہ آپ کے پاس آئے ہیں۔ یہ یقین دلانے کہ انشاءاللہ ہم فردن اور اجتماعاً ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جب تک کہ اس کالے قانون کو دفن نہیں کیا جاتا۔ اور اب ذکر کریں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا، جنہوں نے پی ایم ٹی اے بل کو کالا قانون قرار دے دیا اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا اعلان بھی کیا۔ اسلام آباد میں صحافیوں کے دھرنے سے خطاب میں کہا، قانون پاس ہوا تو عدالت سے لے کر سڑکوں تک ساتھ دیں گے۔ عمران خان اور وزراء کو فوج کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہتے۔ آپ کے حق روزگار کی بات ہے، ہم ایک پیج پہ ہیں، جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم پارلیمان میں اس کا بھرپور مخالفت کریں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے یہ کالا قانون پاس ہو جاتا ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا، عدالت سے لے کے پاکستان کے سڑکوں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کے اپوزیشن کے جو جماعتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے مشترکہ اجلاس سے خطاب سے پہلے تاریخ میں پہلی مرتبہ پارلیمنٹ ہاؤس کی پریس گیلری بند کر دی گئی۔ صدر مملکت نے دوران خطاب میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پریس گیلری کی نظر ڈالی تو سناٹا دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ وہاں ان کی تعریف سننے کے لیے صرف خالی کرسیاں تھیں۔ احساس پروگرام کے تحت 12,000 روپے سب کو دیے گئے۔ پھر میڈیا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے گمراہ کن خبروں کا تذکرہ بھی کیا اور کہا کہ جعلی خبروں سے دنیا تباہ ہوئی اور قوموں کو گمراہ کیا گیا۔ جعلی خبریں الیکشن پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ فیک نیوز دنیا تباہ ہوئی ہے اس بنیاد پر، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔
अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई अहम खबर लाए तो उसकी अच्छी तरह से तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम जज्बात से मगलूब होकर किसी कौम पर जा चढ़ो, फिर तुमको अपने किए पर पछताना पड़े। तो मैं कहता हूं फेक न्यूज का हमला दुनिया भर में इस वक्त बड़ा खराब हमला है, इलेक्शंस के ऊपर असरअंदाज करता है। लिहाजा पाकिस्तानी कौम अगर ये चीज, इसमें पैसे नहीं खर्च होंगे, अगर ये चीज सीख ले कि फेक न्यूज को तराजू में तोलकर एहतियात करे तो ये एक ताकत आपकी बढ़ेगी, बहुत जरूरी। अगले जमाने के लिए इनके हथियार बहुत मजबूत हो गए। गीबत बड़ी मोहलिक है, कौम को तबाह करती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या ऐसा है कि तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? तो वी हैव टू बी केयरफुल। तो मैंने आपसे कहा कि फेक न्यूज और गीबत, इसमें कोई पैसा नहीं खर्च होता, सिर्फ अपने अखलाक की तामीर आप करते हैं। मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं है। ये मेरे घर के अंदर कई घंटे मेरे बच्चों के सामने जब मीडिया है तो इसकी जिम्मेदारी है कि कौम की तरबियत की बात करे, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं। ईवीएम को सियासी फुटबॉल ना बनाया जाए, इंतखाबात में शफाफियत के लिए इस्लाहात जरूरी हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, अपोजिशन शोर मचाने के बजाय हकीकत तस्लीम करे। भारत चीन ताल्लुकात में दरार पैदा करने की कोशिश में नाकाम होगा। कश्मीर पर अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। अफगानिस्तान से इनखला में पाकिस्तानी ताउन को दुनिया ने सराहा है। हुकूमत ने खास तौर पर और वजीर आजम इमरान खान ने माशी कामयाबियों पर तफसीली रोशनी डाली है, मगर मैं चीदा कामयाबियों का जो जिक्र करना जरूरी समझता हूं यहां पर, इसके बावजूद कि आप शोर मचाएं, हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। अपोजिशन की नारेबाजी में सदर मुमलिकत का खिताब। अपोजिशन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, शोर मत मचाओ, हकीकत तस्लीम करो। करप्शन की वजह से मुल्क तरक्की से महरूम रहा। हुकूमत ने लूट मार के बजाय इंसानों पर फोकस किया। बदकिस्मती से माजी में ह्यूमन डेवलपमेंट के शोबों को नजरअंदाज किया गया। करप्शन के नासूर और माजी की गलत तरजीहात की वजह से हम न सिर्फ तरक्की से महरूम रहे बल्कि इंसानी समाजी तरक्की के तमाम इशारियों यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की में भी दुनिया से पीछे रह गए। सदर मुमलिकत ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात को मुतनाज़ा न बनाया जाए। ईवीएम में पुराने बैलेट का निजाम भी शामिल है। ईवीएम एक अहम आला-ए-कार है जिससे न सिर्फ इंतखाबात में शफाफियत आएगी और नताइज का बरवक्त पता चलेगा। इस सिस्टम के अंदर पुराना बैलेट पेपर का सिस्टम भी शामिल है। सदर ने पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कहा, फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। फरवरी 2019 में भारत ने पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की जो खिलाफ वर्जी की तो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि अफगानिस्तान से मुतल्लिक इमरान खान का मशवरा दुरुस्त साबित हुआ। दुनिया को इमरान खान की शागिर्दी इख्तियार करनी चाहिए। दुनिया को यह भी तस्लीम करना होगा कि अफगानिस्तान के बारे में मोहतरम इमरान खान साहब और पाकिस्तान का मशवरा दुरुस्त साबित हुआ। इस मौके पर मैं पहले भी कह चुका हूं, दुनिया को पाकिस्तान को बिला जवाज तनकीद के बजाय इमरान खान के सियासी तदब्बुर को अपना अच्छा समझते हुए दीगर मामलात में भी इनकी शागिर्दी और मुरीदी अख्तियार करनी चाहिए। सदर मुमलिकत का कहना था कि हमें इंसानी हुकूक समझाने वाले ममालिक महाजरीन को जगह नहीं देते। हमने इंसानी हमदर्दी के तहत लाखों महाजरीन को पनाह दी। मौलाना फजल रहमान ने पीएमडीए को डंडा अथॉरिटी करार दे दिया। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए कहा, जमहूरियत और सहाफत लाजिम व मलजूम है। पीडीएम तमाम सियासी जमातों को जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए दावत देगी। ये जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी उन्होंने बनाई है, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान मीडिया डंडा अथॉरिटी है और ये मीडिया का गला घोंटने के लिए और उनकी जुबान को ताले लगाने के लिए ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं और यही आमरीत की अलामत होती है कि आमिराना निज़ाम में मीडिया को कैद कर लिया जाता है, उनकी आज़ादी राय के इजहार का हक उनसे छीन लिया जाता है।
उनको बड़े शाइस्ता अंदाज के साथ एक अथॉरिटी बनाकर और उसे कानून का लबादा उड़ा के इस तरीके से वो आज़ादी राय पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। हमने हमेशा आज़ादी की बात की है, हमने जमहूरियत की बात की है, हमने अगर इस्लाम की बात की है तो वहाँ पर भी इज़हार राय की तालीमात अल्लाह ने इंसानियत को हक दिया है। तो इस एतबार से ऐसे कवानीन काले कवानीन कहलाते हैं और हम यकीनन इस हवाले से मीडिया के साथ हैं। बात करेंगे वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की, जो कहते हैं पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पढ़े बगैर एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज छोड़े, हल बताएं। आज न्यूज से गुफ्तगू में बोले, छोटी खबरों का खात्मा बड़ा चैलेंज है। कुछ लोग इसे कानून बनाना चाहते हैं, अपोजिशन को सिर्फ मुखालफत ही करनी है। ज्यादातर जो लोग हैं, एक तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं है, और दूसरा वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो फेक न्यूज को चाहते हैं कि लीगलाइज रहने दिया जाए। अब आप मुझे बताइए कि एक फेक न्यूज जो है उसको अगर हमने काबू नहीं करेंगे और इतने उसके ज्यादा मसाइल हैं तो उसका कैसे कोई हल हो। मैंने यही कहा है कि इसको छोड़ दें, आप अपनी तजवीज दे दें कि फेक न्यूज को हम कैसे जो है वो काबू कर सकते हैं। और पूरी दुनिया में इस वक्त जो एक बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट जो इक़दाम कर रही है वो फेक न्यूज के खात्मे का है, और ज़ाहिर है पाकिस्तान ने भी यही करना है। जो एहतजाज कर रहे हैं, मैंने उनको यही अर्ज किया है कि आप एहतजाज इसको छोड़ देते हैं, आप बिल को, आप मुझे ऑल्टरनेटिव दे दें। ऑल्टरनेटिव तो दे नहीं रहा और बातें करी जा रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के खिलाफ सहाफियों का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाजी धरना खत्म हो गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर सियासी कायदीन इजहारी यकजहती के लिए धरने में पहुंचे। मुजव्वजा बिल के खिलाफ मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। सहाफी रहनुमा कहते हैं, किसी सूरत आजादी इजहारी राय पर समझौता नहीं करेंगे। मजदूर से तेज हो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के खिलाफ सहाफी, सियासी कायदीन, वकला, सिविल सोसाइटी शाना बशाना। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस्लामाबाद में सहाफियों ने पार्लियामेंट के सामने धरना दिया। सियासी कायदीन भी इजहार यकजहती के लिए पहुंचे। मुजव्वजा बिल के खिलाफ मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। अयूब खान का दौर, जियाउल हक का दौर और मुशर्रफ के दौर को अगर इकट्ठा कर दो तो उससे ज्यादा जुल्म का दौर आज का ये दौर हमारे सामने है। अगर ये साजिश और ये मीडिया कंट्रोल करने का ऑर्डिनेंस कामयाब होता है तो पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत की मौत वाक़या हो जाएगी। इस मुल्क को किसी की जागीर नहीं बनने देंगे। किसी भी मीडिया के हवाले से, किसी भी बिल के हवाले से, किसी भी अथॉरिटी को बनाने से पहले उसके स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया जाता है। स्टेक होल्डर कौन है? मैं समझता PFUJ है, CPNE है, APNS है और PB है। जब तक आप उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, आप उनके गुफ्तगू में शामिल नहीं करेंगे, आप उनके मशवरों को शामिल नहीं करेंगे, तो चीजें मुल्क से आगे नहीं बढ़ती है। सहाफी रहनुमाओं का कहना था कि सहाफत को आमिराना सोच के साथ कंट्रोल करना किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा सदर पाकिस्तान के जॉइंट सेशन के मौका पर पार्लिमानी प्रेस गैलरी को ताला लगा है। ये कभी किसी डिक्टेटर के दौर में भी नहीं हुआ। कल से तहरीक का नुक्ता आगाज है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया जो है तारीख के बदतरीन बहरान से गुजर रहा है। एहतजाज में मुल्क भर के सहाफियों समेत दीगर शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप आज के साथ रहिए।